presenting my screen, guys? Just reply yes if you're able to see the screen. Just reply yes, guys, if you're able to see my screen. All right, so myself, Ziaul Islam from Bhopal. I'm the director of MVM Trading and Technical Institute. Many of you know me, right? So my trading career is almost 16 years from here, okay? And I'm basically into core trading and training, and almost conducted more than 100 plus sessions till date, taught more than 1500 students till date, okay? And basically we are into manual analysis. Okay, what is manual analysis? I will definitely tell you after some time, okay? And we are basically working from the scratch, okay, of the charts. Very less use of indicators, okay, hardly 10% you can say, just for the confirmations. Rest everything is, guys, manual, okay? You will come to know the power of manual analysis very soon, guys, because this is something which is working from the past many years and will keep on working until you are alive on this earth, okay? So it is not a strategy for Nifty or Bank Nifty or for any stock, okay? It is not a pre-designed software, okay, for your needs. It is something in which you have to devote your time, and then definitely you will get the results awesome in every market around the world, guys. Let it be any market, US market, Europe market, London market, Indian market, any market, guys. You can be a professional in any kind of market, guys, okay? Not only Indian market, but in any kind of market. But for that you have to be professional from manual part, okay? Because manual is something which will work forever, right? But if you talk about the softwares or the indicators that work for a particular period of time, and then they don't work, right? So how many of you agree, guys, with this point, that softwares or indicators don't work forever? Type yes. How many of you agree with this? Keep interacting, guys, throughout the session. It will make the session more interesting, okay? And if you're feeling bored, guys, then I think this is not the platform for you, okay? So if you'll keep interacting, guys, then the session will be more and more interesting for you also, for me also, okay? So I hope everyone will cooperate in this, okay? All right, so now, guys, moving on to the PPTs, okay? See, I never make any kind of PPTs and all, just I have made it just to make you understand, okay, that what exactly I wanted to tell you, okay? All right, guys, so starting with the first point, I think many of you have joined a bit earlier, okay? And they must have gone through the slides, okay? Just a second, guys, let it open. Yes. All right, so, guys, these are some of the points which I thought that you should know, okay? If you're going to be a professional trader, you should definitely know these points, okay? These are the basic point, not so much,
something which you don't know, but these points are very important if you want to become a professional trader in your life. Okay, so coming to the first point, guys, trend line. Okay, now trend line is a tool, guys, which most of the people ignore, or they only make limited number of trend lines, like an upward trending trend line or a downward trending trend line. Okay, but they really don't know the power of the trend line. Okay, many of you are in my groups, okay, and you are very well aware about the reversals which we give one day in advance. Okay, whatever levels we give in advance, that levels exactly are respected the next day. So what is the reason, guys? Is it a magic? No, there is no magic in stock market, guys. It's only and only the probability of your analysis which you're doing. Okay, so it totally depends what kind of analysis you are doing, what is your view on the chart. My view might be bullish on Nifty right now, but some of you might be thinking that it will fall. Okay, so the view changes from person to person. Okay, so it totally depends how you are visualizing the chart, how you are seeing the chart, and on that only the further journey decided. Okay, so your journey is only and only decided by what you are visualizing on the chart. Okay, so trend line is one of the most powerful tool to identify the advanced reversals of any stock or index in any market around the world. Okay, yes, it can be applied in any market. Okay, whatever market it is, it doesn't matter, but we can apply it in any market around the world, guys. You will get the perfect reversals in advance. Okay, second point, support and resistance is never a single level. Okay, many of you are confused always with support and resistance, guys, right? Like for example, someone told you 15,700 is the support for Nifty. So what does it mean? If it is breaking 15,700 and coming to 15,690, is it time to sell? Yes or no? Now, if you know about the support as a single level, you will say yes, it's time to sell because it has broken the level of 15,700, right? But if you are a trader who very well know that support and resistance is never a single value. Okay, it's always a range. All right, support and resistance is never a single value, it's always a range, guys. Okay, like what I give you in the groups. Okay, like 15,670 to 15,705 is the strong support zone. What does it mean? It means that between 15,670 to between 15,705, Nifty can reverse from anywhere in between these 35 points. Okay, so that's why, guys, we need to know this concept very clearly, that support and resistance is never a single level. Okay, it's always a zone or an area. Okay, or it's always a demand or a supply zone, if we talk in layman terms, right? Coming to the third point, guys, when a particular demand or supply zone is tested more than 3 times, read it very carefully and listen very carefully what I'm telling you right now. Okay, when a particular demand or supply zone is tested more than 3 times, it has higher chances of breaking that level in the future retest. What does it mean? Let me show you something. Here is a trend line, guys. Okay, let me go to the blank chart, blank area. Okay, I think that will be best for you. Okay, so guys, this is a trend line. Okay, now price started falling from here, first retest, again gone down,
second retest, again gone down, third retest. Okay, so guys, sorry, this is the fourth one, this is the first one, second, third and fourth. So when a price touches a particular demand or supply zone more than 3 times, it has a higher probability of breaking the level on the fourth retest in the future. Okay, means the momentum is decreasing, guys. Here 3 times it has retested the same area, fourth time it has a higher probability of breaking the same levels and converting a supply zone into a demand zone. Okay, I hope the concept is clear to you. What does it mean? That if a particular level is retested more than 3 times, the level become little bit weaker, okay, as compared to the previous 3 times, and it has a higher probability of breaching that particular level on the fourth time. Okay, so it's an important point, guys. I think you all should note it down. Okay, screen is not visible, guys. Kindly reply. Is the screen not visible, guys? Yes, sir. It's Yes, not. sir. It's not visible. Danish. सर विजिबल है, सर विजिबल है. Okay. सर विजिबल है लेकिन वो स्लाइड नहीं दिख रहा है. ओके ओके ठीक है, अभी मैंने स्लाइड पे नहीं हूँ मैं दूसरे उस पर. ठीक है. ओके, ऑलराइट. So guys, I hope the third point is very very clear to you, that if a particular demand or supply zone is tested more than 3 times, it has a higher chances of breaking that level in the future retest. Okay, this is a very important point. You all should note it down. Fourth point is a very interesting point, guys. Many of you might know this point and many of you don't know this point. Okay, 20 SMA acts as a strong support or resistance level for intraday trading in any script. It is used to identify the intraday trend. Okay, for example, you don't know anything about technicals, you are simply a beginner in technical analysis, and you want to know the trend of any script. Okay, so it's very simple, guys. Just plot a 20 SMA on the chart and it will give you the real and the current time picture of that particular stock. All right, what I mean to say is that 20 simple moving average will give you the intraday trend of any stock. Okay, just in a single click. Okay, what does it mean? That if the price is trading above 20 SMA, it means it is bullish for intraday, and that particular 20 SMA will act as a support level for that intraday session. Okay, if the price is below 20 SMA for that particular whole trading session, 20 SMA will act as a resistance from morning till 3:30 until that level is not broken. Okay, so you all can try it on your charts and just tell me in the comment. Okay, the video will be uploaded on YouTube, guys, very soon after the webinar. So kindly put your comments under the video that exactly it is working or not. Okay, fifth point, guys, Bollinger Bands can be used to identify intraday breakouts and reversals. Okay, see, there are n number of indicators which we know, which we are aware about, right? But I really don't prefer going with the indicators, guys. Okay, because indicators confuse us. One is saying that now you go for buy, one is saying now you go for sell, one is saying now you wait. So guys, what you will do ultimately? Okay, each and every indicator is speaking something else. Okay, one is saying buy, one is saying sell, one is saying wait. So what you will do exactly? So better, guys, ignore indicators and try to be a price action trader. Okay, in the coming 10 years, guys, you will see that almost 80 to 90% of the traders will be converted into the price action traders. Okay, because guys, this is the only thing which is working in market, and this is the only thing by which people are making money right now. Okay,
Even I can tell you all the future levels which will come in the next week for any script, okay? Or I can tell you the advanced reversals of any script, okay, just with simple analysis. So this is something which will work forever, guys. Let it be today, tomorrow, 10 years, 20 years, 50 years, whatever, guys. It is something which will work forever, guys. It is not going to, give you bad results anytime, okay? So Bollinger Band is something which will give you intraday breakouts, reversals, and it is also a useful indicator for identifying the trends. I think you must be aware about this, right? Bollinger Band is the only tool which will give you trend in advance, that whether it is bullish, slightly bullish, highly bullish, sideways, bearish, slightly bearish, or highly bearish. It will give you each and every kind of picture very clearly in advance, okay? So Bollinger Band is a very, very useful indicator, and I think you all must work on it, okay? Coming to the second last point, Fibonacci tool is the only tool which can be used to identify exact entry and exit points well in advance, okay? I hope you all must be aware about the Fibonacci tool, okay? So Fibonacci retracement and Fibonacci projection are the tools which we are using for taking the exact entry and the exact exits well in advance, okay? So this is also one of the important tool, guys, which we can use to identify the entry and the exit points well in advance. And the last point, which is very, very, very important, guys, for all of you, that is ATR is the best indicator for placing a logical stop loss in any script, okay? You all must be very, very frustrated when market comes exactly to hit your stop loss and then it reverses, right? How many times has it happened with all of you? Reply in the comment. Yes, guys. How many times it happened with you? That market, Sir, more than 2 times. okay? Market exactly comes, guys, to hit our stop loss. Then we say कि यार मेरा ही stop loss लेने आया था market, right? Yes, sir. Right. We say this word definitely. कि यार मुझसे ही market की दुश्मनी है, मेरा ही stop loss लेने आया था, and now it reversed. So guys, have you ever thought why this is happening always to you? Sir, Yes, Bhavik. one person is waiting, sir. उनको allow कर दीजिए ना. अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं है. ऑटोमेटिक अलाउ हो जाएगा वो. अच्छा, ऑटोमेटिक अलाउ हो जाएगा. Okay, guys. ठीक है. So the reason behind that is that we are keeping that stop loss which is visible to most of the retail traders. Are you getting my point? Okay. So I am going to tell you one tool which is called as ATR, average true range. If you are keeping a stop loss as per ATR, it will give you a stronger stop loss than other people, okay? So the chances of hitting is very less as compared to your previous approach, okay? So if you are trying this with the help of ATR, okay, I will tell you how to do it, okay? In the coming slides, I will tell you how to do it when we come to the charts, when we come to the practical part, I will tell you. Till then you wait, okay? But understand the point that ATR is a best indicator for placing a logical stop loss. What does you mean by logical stop loss? Means the stop loss which has a very less probability of hitting, okay? Means that level has a very less probability that market will hit that level, and if in case
that level got hit, then there are high probability that the trend of the script may change. Okay, so these are some of the important points, guys. I thought I would write it for you, so I have written. I hope it will help you a lot in the future trading. Okay, coming to the first slide of our webinar, that is TAE framework. Okay guys, believe me, theory is also very important when we want to become professional. Okay, बहुत से लोगों को लग रहा होगा यार स्लाइड दिखा रहे हैं, स्लाइड से क्या होगा, चार्ट्स पे आ जाएं, सीधे लेवल्स की बात कर लें, कल क्या होना है, कल बाय कहाँ पे करना है, कल सेल कहाँ पे करना है, ये बता दें और फिर हम अपने अपने घर पे अपना काम करें और वेबिनार को क्लोज करें, राइट। अगर ये आपकी सोच है गाइस, तो आप अभी ही इसको छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आपको सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा गाइस। लेवल तो मैं वैसे भी बताता हूँ, ठीक है, आप वेबिनार ज्वाइन नहीं भी करेंगे तो भी मैं लेवल बताता हूँ, ग्रुप्स पे अपडेट करता ही हूँ, बट मैं आज आप लोग को सिखाने के लिए आया हूँ गाइस। ओके, नॉट फॉर द लेवल्स। लेवल्स तो मैं डेफिनेटली दूंगा ही आपको, वो तो मुझे देना ही है और वो मैं देता आ रहा हूँ सालों साल से। बट द थिंग इज दैट आई वॉन्ट टू टेल यू अ फ्रेमवर्क ऑन विच वी आर वर्किंग। ठीक है, बहुत से लोग पूछते हैं सर you are almost in profits throughout the month, what is the reason? The reason is that we follow a particular framework guys. Okay, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिस पे अगर आप काम करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग में चेंज दिखेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि यस डेफिनेटली वी आर ऑन अ राइट पाथ नाउ। बट होता क्या है गाइज, हम भागते हुए ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं या गिरते हुए मार्केट को पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर लॉस करते हैं और फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट? यस गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट गाइस? राइट, 100% सर, 100%। सो गाइस लॉजिक को समझिए। देखिए यहाँ पे जो लोग लेवल्स के लिए आए हैं, मैं बहुत क्लियर कट बात करता हूँ गाइस कि आप लोग अभी सेशन छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि संडे का दिन इसीलिए रखा जाता है, हर बंदा फ्री होता है, वर्कलोड नहीं होता है, 12 बजे का टाइम रखा है, आराम से हम लोग उठ के फ्रेश हो जाते हैं, एवरीथिंग इज डन एंड देन आई हैव स्टार्टेड द सेशन। ओके, सो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इस सीखने के लिए। सीखना ही जिंदगी का नाम ही सीखना है गाइस। अगर हम सीखते रहेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, लेट इट बी एनी फील्ड गाइस। स्टॉक मार्केट स्पेशली एक ऐसी फील्ड है गाइस जिसमें अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, और आने वाले 10 सालों में आप लोग खुद देखेंगे गाइस कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको दिखेगा कि लोग आगे प्रोफेशनल तरीके से बढ़ रहे हैं, बिकॉज अब अवेयरनेस बढ़ रही है इंडिया में भी। तो उसके लिए गाइस डेफिनेटली हमें टाइम देना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, मूविंग टू द स्लाइड। नाउ व्हाट इज TAE फ्रेमवर्क गाइस? ओके, एज यू ऑल कैन रीड, T स्टैंड फॉर ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, A स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी गाइस, ओके, and E stands for entry trigger. ठीक है, if you are following all these three framework, definitely your trade is going to be logical. Are you getting my point? Your trade is going to be logical guys. What does it mean by logical? That whatever trade you are taking, you will have the justification for that trade. ठीक है, यानी कि हम ट्रेड जब ले लेते हैं उसके बाद अगर हमसे कोई पूछता है कि यार ये ट्रेड क्यों लिया, तो कई बार हमारे पास आंसर नहीं होता है। ठीक है, ब्रोकर ने बोल दिया था, किसी ग्रुप में आ गया था, मेरे दोस्त ने बोल दिया था, राइट। तो बोल दिया था से गाइस आपका पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, जब तक आपके पास उस ट्रेड का सॉलिड जस्टिफिकेशन नहीं होगा कि आपने ये ट्रेड क्यों लिया है, व्हाट इज द रीजन, प्रॉफिट और लॉस सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। ठीक है, बट अंटिल एंड अनलेस यू डोंट नो द रीजन ऑफ योर ट्रेड, इट इज नॉट एट ऑल अ प्रोफेशनल ट्रेड। ओके, तुक्के में तो गाइज लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन तुक्का यहाँ पे सालों साल नहीं चलेगा, कुछ समय के लिए चलता है, उसके बाद हम सारा पैसा लूज कर देते हैं एक ही ट्रेड में। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट? एग्री सर, एग्री। ठीक है, सो गाइस एग्री सर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सभी लोग पैसा बना रहे हैं कहीं ना कहीं से, हमारे पास किसी के पास कोई स्ट्रैटेजी है, किसी के पास CPR है, किसी के पास पिवट पॉइंट्स हैं, किसी के पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है, किसी के पास कोई इंडिकेटर है, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर मेनी काइंड ऑफ थिंग्स विच यू ऑल आर वर्किंग ऑन विद।
बट गाइज अगर उसी में हम एक फ्रेमवर्क को एड अप कर दें जो कि हमारी ट्रेडिंग में जान डाल दे, ठीक है, सो आई थिंक वी ऑल शुड डू इट. ओके, so TA is the framework which I am following, my students are following, and we are getting very good results, guys. Okay, so what is T? T is trend analysis, A is area of opportunity, and E is entry trigger. Okay, coming to the trend analysis. Okay, मैंने बहुत शॉर्ट टर्म में गाइस इसको लिखा है क्योंकि अगर मैं खाली ट्रेंड एनालिसिस पे बात करूंगा तो 4 घंटे का समय मुझे चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं उतना समय लूंगा नहीं. आई विल जस्ट गिव यू द मेन पॉइंट्स. ओके, सो ट्रेंड एनालिसिस आप सभी लोगों को मालूम है गाइस, बुलिश ट्रेंड, अपसाइड, बेरिश ट्रेंड, डाउनसाइड, साइडवेज, कंसोलिडेशन फेज, ठीक है. तो ये 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं गाइस जो हम सभी लोगों को मालूम है कि ऐसा होता है, राइट. नाउ द पॉइंट इज कि इंट्राडे के अंदर गाइस हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम्स को लगाते हैं स्क्रीन पे, ठीक है. फिर उसमें हम तरह तरह के इंडिकेटर लगाते हैं, ठीक है, तरह तरह की चीजें लगाते हैं. 5 मिनट देखेंगे, 15 मिनट देखेंगे, 1 आवर देखेंगे, फिर अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाएंगे. 5 मिनट ने बाइंग दे दी, हम एंट्री ले लेंगे, लेकिन 15 मिनट ने बाइंग नहीं दी थी, फिर हम कहेंगे अरे यार अब तो गलत एंट्री हो गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एवरेज कर लेंगे. एवरेज करने में क्या होता है, मार्केट बहुत नीचे चला जाता है, फिर हमारा जो ट्रेड इंट्राडे का था वो बन जाता है पोजिशनल, और फिर हम बन जाते हैं इन्वेस्टर. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट? एग्जैक्टली सर. राइट, ठीक है. तो गाइज वो चीजें नहीं करना है, ठीक है. एक होती है सिंगल टाइम फ्रेम एनालिसिस जो आप सभी लोग करते चले आ रहे हैं. उसका मतलब क्या हुआ कि 5 मिनट का चार्ट खोल लिया और एनालाइज कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है. अब कोई कहता नहीं सर मैं 5 मिनट यूज नहीं करता, मैं तो 15 मिनट यूज करता हूं. ठीक है, आपने 15 मिनट को एनालाइज कर लिया, लेकिन अब आपने 5 मिनट को छोड़ दिया. है मैं करेक्ट? अब कोई बंदा कहता नहीं सर मैं तो दोनों करता हूं, 5 भी करता हूं 15 भी करता हूं, दैट्स वेरी गुड. कोई कहता नहीं सर मैं एक और करता हूं, 1 आवर भी करता हूं. तो गाइस जब आप मल्टीपल चार्ट्स को एनालाइज करते हैं सिंगल स्क्रीन पे, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइनलाइज द ट्रेड. ठीक है, कि अब मुझे यहाँ पे बाय करना है या नहीं करना है, या कंफर्मेशन का वेट करूं नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आता. फाइनली ट्रेड हमारा लॉस में चला जाता है. ओके, तो एक होती है सिंगल टाइम फ्रेम एनालिसिस जो हम करते चले आ रहे हैं, और एक होती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस गाइस. ठीक है, जो कि सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे हम करते हैं, दैट इज 15 मिनट और 1 आवर, वट एवर यू चूज. और वो एक टाइम फ्रेम हमें सारे टाइम फ्रेम के लेवल्स निकाल के दे देता है. ओके, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची टूल्स, ट्रेंड लाइन्स एंड मेनी काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, so that is a long list, but I am telling you that multi time frame analysis is something which will definitely save your time, okay, which will give you higher accuracy as compared to the single time frame analysis, and which will help you to take faster decisions as compared to single time frame analysis. ठीक है, सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि हमने 5 मिनट का चार्ट भी खोल लिया, 15 का भी खोल लिया, 1 आवर का भी खोल लिया, डेली का भी खोल लिया. इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ एक टाइम फ्रेम खोला और उसी टाइम फ्रेम पे सारी की सारी एनालिसिस मैंने कंप्लीट कर दी. ओके, दैट इज कॉल्ड अ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस. ठीक है, कमिंग टू द 6th पॉइंट, विच इज ट्रेंड लाइन्स आर द मोस्ट एक्यूरेट टूल टू आइडेंटिफाई एनी टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स ऑन एनी टाइम फ्रेम. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपको राइट हैंड साइड पे यहां पे दिख जाएंगे गाइस, राइट, लाइक दिस वन. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बुलिश ट्रेंड लाइन. यू कैन सी वी हैव जॉइंड द पॉइंट्स ऑन द अपर साइड एंड इट इज क्लियरली शोइंग दैट प्राइस इज रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन. वेरी गुड. ओके, this is an example of uptrend, this is an example of downtrend. So like this we draw different kind of trend lines, and trend line is a very important tool guys to identify the trend. ठीक है, तो पहले नंबर का काम था गाइस कि ट्रेंड को एनालाइज करना था, एंड वी हैव डन इट सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइंस एंड सम अदर टूल्स. ओके, और अब हमें ये पता चल गया है डेफिनेटली कि इंट्राडे में ट्रेंड क्या है, राइट. बिकॉज कई बार क्या होता है गाइस कि हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बुलिश होता है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे एक रिट्रेसमेंट आता है जिसकी वजह से मार्केट हमें बेरिश दिखने लगता है. ओके, सो इट टोटली डिपेंड्स गाइस विच काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर. Are you a scalper or a jobber? Then the lower time frames are good for you. If you are a small holding
trader like BTST, STBT, then little bit higher time frame is good for you. Okay. If you are a investor, then higher time frame like daily, weekly is good for you. So it totally depends. आपको किस तरीके की ट्रेडिंग करनी है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है. आप इंट्राडे ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, BTST, STBT ट्रेडर हो, या वीकली होल्डिंग ट्रेडर हो, या मंथली होल्डिंग ट्रेडर हो. इट टोटली डिपेंड्स. ठीक है. सो ट्रेंड को एनालाइज करना गाइस एक टफ पार्ट है, इतना इजी नहीं है. ठीक है. जो हम लोग को लगता है कि एक ट्रेंड लाइन हमने बना दी, ठीक है, या हमने कोई इंडिकेटर मार्क कर दिया, उससे हमें पता चल गया कि ट्रेंड ऐसा है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो सब कुछ अच्छा है गाइस. अगर मैं अभी लॉन्ग टर्म की बात करूंगा तो लॉन्ग टर्म में तो सब कह सकते हैं कि हाँ निफ्टी यहाँ से 16,500 जाएगी, 17 जाएगी, बैंक निफ्टी यहाँ से 38,000 जाएगी, वो तो हर बंदा कह रहा है. लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होगा, इंट्राडे में क्या होगा, दैट इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू एनालाइज. एम आई करेक्ट गाइस और नॉट? यस सर. करेक्ट सर. ठीक है. और इंट्राडे ट्रेडिंग गाइस एक ऐसी चीज है जो कि सबके लिए नहीं बनी है. ओके, इट इज नॉट मेड फॉर एवरीवन. ठीक है. अब आप लोग को, थोड़े लोगों को अजीब भी लग रहा होगा कि यार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि सबके लिए नहीं बनी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब गाइस ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज समथिंग इन विच यू नीड अ हायर प्रोबेबिलिटी और द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी. ठीक है. बिकॉज यू आर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट. ओके, you are trying to time the market, you are not giving time to the market. Okay, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है that don't try to time the market, try to give time to the market. Okay, मार्केट को कभी भी टाइम नहीं करना चाहिए because you never know what will happen, right? But if you give time to the market, then definitely you will get good returns, right? This is a 100% true thing that if you give time to the market, you will get returns. But now coming to the intraday part, is it easy or a tough part as per you? Yes guys, all of you reply. Easy or tough intraday trading? Easy. All of you reply guys in the chat box. इजी सर. Mic unmute मत करिए guys. All of you reply in the chat box. Okay, let us interact guys. थोड़ा सा हाथ भी चलाएं हम अपना. ठीक है. Yes, all should reply guys. All 30 people should reply. Mr. Lakasa Pawar, kindly stop presenting your screen. मैं नहीं सर, लाइन में हूँ सर. मैं थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है. Okay. Alright, screen visible है guys सभी को? Just a second guys. Okay, so guys, ज्यादातर लोगों का आंसर यह है that it is tough, complicated, easy भी कह रहे हैं कुछ लोग. Very good. Tough, easy, tough, trying to getting better day by day. Okay, so कुल मिला के गाइज हम सबकी कोशिश यही है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग में परफेक्ट बन जाए. राइट? Am I correct? Okay. So guys, इंट्राडे ट्रेडिंग सभी को पसंद है. सुबह 9:15 बजे उठना, 3:30 तक प्रॉफिट बुक करके शाम को एंजॉय करना. राइट? एवरीवन लाइक दिस, बट फॉर दैट वी नीड हाई स्किल्स गाइज. ओके, किसी भी फील्ड में गाइज हम तुरंत प्रोफेशनल लेवल तक नहीं पहुंच सकते. दुनिया की किसी भी फील्ड को आप उठा के देख लीजिए, लेट इट बी एनी फील्ड. ये चीज़ आपने कई बार सुनी भी होंगी पहले. अगेन आई एम रिपीटिंग इट. ठीक है? दुनिया की कोई भी फील्ड आप उठा लीजिए गाइज, लेट इट बी एनी फील्ड गाइज. ठीक है? बट आपको एक्सपर्टीज जब ही मिलेगी जब आप उसमें जो डेडिकेटेड टाइम है, उतना टाइम जब तक आप देंगे तभी आपको एक्सपर्टीज आएगी. अदरवाइज यू विल नॉट गेट इट.
ओके, दिस इज अ रियल ट्रूथ गाइस, आप लोग माने या ना माने, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता होगा अरे यार हम तो बिल्कुल मार्केट के बादशाह हैं, डेली पैसा बना रहे हैं, हमसे अच्छा तो कोई नहीं, राइट। मार्केट सिर्फ एक दिन का समय लेता है गाइस, सिर्फ एक दिन का, ठीक है। कितना समय लेता है? सिर्फ एक दिन का समय लेता है, आपका सारा कॉन्फिडेंस जमीन पे लाके पटक देता है। टेल मी if I am wrong guys. Yes, reply in the chat box guys, correct or not, ठीक है guys। I'm handling very big portfolios right now, okay, and I want to tell you one thing very clearly कि कुछ लोगों को लगता होगा कि अगर पैसा होता तो शायद हम मार्केट से डेली पैसा बना लेते। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट कि अगर हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होते तो हम प्रॉफिट ही बनाते, लॉस ना करते? कितने लोगों को ऐसा लगता है गाइस कि अगर आपके अकाउंट पे 1 CR होगा तो आप लोग सिर्फ प्रॉफिट ही बनाएंगे, लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है गाइस, मेनी पीपल थिंक दैट इफ दे हैव मनी इन देयर अकाउंट, राइट, they can beat the market. A person with the account of 15 CR, this is not a story, this is a real thing. A person with an account of 15 CR also, okay, faced a loss of how much in the intraday? 4.5 CR. Just overconfidence guys, okay, because what he is doing, he is averaging at every 50 points, okay, और मार्केट उस दिन मूड में था ही नहीं ऊपर जाने के। It kept on falling, kept on falling, kept on falling, back to back red candles, back to back red candles, back to back red candles, and finally guys that guy was holding 3000 lots of Nifty, and then finally he has to exit the positions, okay, with 4.5 CR loss in a single day। बहुत बड़ा झटका होता है गाइस, हमारे लिए तो ये ड्रीम है गाइस, राइट, बहुत से लोगों के लिए ड्रीम है गाइस ये 4.5 CR का लॉस करना। प्रॉफिट तो दूर की बात है, 4.5 CR हम में से बहुत लोगों ने अभी तक देखे ही नहीं होंगे, राइट, बिकॉज इट्स अ बिग कैपिटल, राइट। लेकिन गाइस यस, एक क्वेश्चन आया है मिस्टर पवन का, दैट जब इतना लॉस देख लिया देन व्हाई टू सेल ऑन सेम डे। देखिए गाइस, क्या होता है कि जब पैसा होता है तो हम जिद में आ जाते हैं, ठीक है, कि अब मार्केट कहां तक जाएगा, मार्केट कहां तक जाएगा, ठीक है, मार्केट जीरो तो नहीं हो जाएगा। बहुत से लोग आपको ये चीज बताते होंगे कि यार मार्केट कहां तक जाएगा, कितना गिरेगा मार्केट, गिरने दो, देखते हैं आज मार्केट कहां तक जाता है, राइट। तो गाइस क्या होता है कि जब हम जिद में आ जाते हैं ना तो मार्केट उस दिन हमारी जिद तोड़ देता है गाइस, ठीक है। मार्केट एक ऐसी चीज है जो आपको कभी भी गलत साबित कर सकता है, सो इट्स बेटर टू वर्क इन अ प्रोफेशनल वे, राइट। ऐसे लगाते नहीं है ज्यादा पैसा होता है तो, राइट, डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को मालूम है गाइस कि क्या होता है मार्केट में, ओके। तो बेसिकली यस, DHFL, यस बैंक, रिलायंस, many more examples guys, many of my friends are holding Yes Bank, ठीक है। Now they are asking me every day what will happen, just hold it, that's all what I can say, I cannot say anything else, because Yes Bank is now, you know very well, 14, 15, 18 rupees stock, right, so it will take time to go to 200, now the money is blocked, we cannot do anything, right। So guys, हम अगर कम पैसे से भी प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग करते हैं देन वी कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, बिलीव मी, ओके। सो सबसे पहला काम था हमारा ट्रेंड को एनालाइज करना, हमने एनालाइज कर लिया, एंड नाउ वी आर रेडी टू डिसाइड द डायरेक्शन कि अब हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अभी हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करा है, क्या कंप्लीट करा है, हमने ये एनालाइज करा है कि ट्रेंड क्या है और हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, अभी सिर्फ हमने इतना डिसाइड करा है। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट गाइस, एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, बहुत ध्यान से स्लाइड को देखिएगा, एंड इट इज
समथिंग विच इज वेरी यूजफुल. ओके, एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है गाइस? ओके, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है दैट वी ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ. व्हाट डज इट मीन? दैट वी ट्राई टू कैच द फॉलिंग मार्केट और वी ट्राई टू कैच द राइजिंग मार्केट, राइट? हमें लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, चलो बाय करके पैसा बना लेते हैं. कभी कभी हम बना भी लेते हैं, राइट? बट ज्यादातर हम पैसा लूज कर देते हैं. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज we are not taking entry at the opportunity area. Okay, we are not taking entry at the opportunity area. इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस, ध्यान से समझिएगा. मार्केट में एक डिमांड जोन बना हुआ था, ठीक है, जहां पे मार्केट बार बार रिवर्सल ले रहा था. नीचे आता था, ऊपर चला जाता था, नीचे आता था, ऊपर चला जाता था, नीचे आता था. इस बार जब नीचे आया गाइस, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर था वो इस एरिया को ध्यान से देख रहा था. यहाँ पे एक पैटर्न बनता है बुलिश इनगल्फिंग और वो यहाँ से बाय कर लेता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो यहाँ से बाय कर लेता है, राइट? लेकिन हम मार्केट को कहाँ पे देखते हैं? हम मार्केट को देखते हैं लगभग इस एरिया पे. हम मार्केट को देखते हैं जब मार्केट यहाँ पे आ चुका होता है गाइस. कहाँ पे? यहाँ पे. अब गाइज जो ट्रेडर यहां पे एंट्री ले चुका होगा डेफिनेटली वो यहां के आसपास कहीं प्रॉफिट बुक करने वाला होगा, ठीक है? चलो मान लेते हैं आपने यहां पे एंट्री ली, एक कैंडल और बुलिश बन गया. लेकिन अब आपको क्या लग रहा है? अरे यार इसको और ऊपर जाने दो, अभी तो ये अच्छा बुलिश है. क्या होता है? मार्केट एक यहां पे रेड कैंडल बनाता है गाइज, छोटी सी, फिर एक और रेड कैंडल बनाता है. आपको लगता है छोटा सा रिट्रेसमेंट है, कोई बात नहीं, और वहीं से एक बड़ी कैंडल बनती है. मार्केट वापस से उस एरिया को भी तोड़ता हुआ नीचे चला जाता है. ओके, क्या होता है? हमने एंट्री ली टॉप पे, स्टॉप लॉस हमने रखा नहीं और वहीं से मार्केट में ड्रास्टिक फॉल आ गया, राइट? तो जो प्रोफेशनल था उसने सही एरिया पे एंट्री ली, एग्जिट सही जगह पे ली, और उसका एंट्री जो पॉइंट था वहां से स्टॉप लॉस भी छोटा सा था. लेकिन आपके पास ना तो कोई स्टॉप लॉस था, ना तो कोई प्रॉपर एरिया था एंट्री का. आपने सिर्फ भागते हुए मार्केट में एंट्री ली, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा भी, आपने बुक नहीं करा, चलो कोई बात नहीं और ऊपर जाएगा, वहीं से मार्केट फॉल हो गया. ऐसा कितने लोगों के साथ अभी तक हो चुका है गाइस? और रिसेंटली कितने लोगों के साथ हुआ है? यस, बताइए. इफ एनीवन वांट्स टू शेयर द एक्सपीरियंस ही कैन. रिसेंटली किसी के साथ ऐसा हुआ है गाइस? राइट, तो ऐसा सभी के साथ हुआ है गाइस, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है? मैं भी पहले ऐसे ही करता था, राइट? व्हेन मार्केट स्टार्टेड शूटिंग अप, आई ट्राई टू कैच द ट्रेंड, बट मैक्सिमम टाइम पे लॉसेस होते हैं बिकॉज गाइस वी डोंट नो द रिवर्सल एरियाज. ओके, until and unless you are not perfect in anything, you should not initiate that business, right? This is also a business. So if we are initiating this business, we should be perfect guys, because यहाँ पे पैसे का डीलिंग हो रही है, यहाँ पे हार्ड अर्न मनी की डीलिंग हो रही है, ठीक है? 1000 रुपए लूज करना इस मार्केट में बहुत ईजी है, लेकिन 1000 रुपए कमाना मार्केट में बहुत टफ है, ठीक है? कई बार 1000 रुपए के लिए गाइज हम बैठते हैं, जस्ट वी वांट टू अर्न 1000 रुपीज, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर इन अ लॉस ऑफ 5000 रुपीज. Am I correct or not, guys? Is it true or not? ठीक है? So guys, ये एक सच्चाई की बात है जो आप सभी लोगों को मालूम है. मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं गाइज कि आपको पॉइंट्स को मैं इंटरकनेक्ट करके बताना चाह रहा हूं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और किस अप्रोच से हमें आगे बढ़ना है, राइट? सो गाइज, कमिंग टू द एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी. एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी में पहला पॉइंट मैंने आपके सामने रीड करा, दैट नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ. आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे इस पॉइंट को. सेकेंड पॉइंट है गाइज, यहां पे पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ. सेकेंड पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
यहां पे लिखा हुआ है ऑलवेज प्लान टू बाय एट एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट इज सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन और डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। ठीक है, यानी कि आपने ट्रेंड को तो आइडेंटिफाई कर लिया गाइस, लेकिन क्या आप कहीं पे भी एंट्री ले लोगे? नहीं लोगे गाइस। ठीक है, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर चुके हो कि ट्रेंड क्या है, लेकिन गाइस आप उस एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी आइडेंटिफाई करो जहां तक अगर मार्केट आता है तो हम वहां पे बाय या सेल को प्लान करेंगे विद अ वेरी स्मॉल रिस्क एंड गुड रिवॉर्ड्स। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस जो मैं आपके सामने यहां पे भी मार्क करने जा रहा हूं, दैट ऑलवेज प्लान टू बाय एट एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हमेशा उस एरिया में बाय करना चाहिए जहां पे अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, जहां से बायर्स एंट्री ले रहे हैं उसको कहते हैं एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी, या जहां से सेलर्स एंट्री ले रहे हैं उसको कहते हैं एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। सो उस एरिया में हमेशा हमें बाय या सेल प्लान करना चाहिए जहां पे एग्जैक्टली बायर्स या सेलर्स की एंट्री होती है। ठीक है, और वो एरिया कौन से होते हैं गाइज? वो एरिया होते हैं सपोर्ट जोन्स, रेजिस्टेंस जोन्स या डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। ओके, थर्ड पॉइंट गाइज, ऑलवेज प्लान टू बाय एट कॉमन पॉइंट्स ऑफ ट्रेंड लाइंस एंड फिबोनाची लेवल्स। ठीक, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला काम हमने किया था ट्रेंड लाइन से ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया था, राइट। उसके बाद गाइज हमने जो एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी वो हमने ढूंढी थी फिबोनाची लेवल से, राइट। तो अब आप कहोगे कि सर वो कौन सा एरिया होगा जहां पे हम बाय या सेल करेंगे? आपने ये तो बता दिया एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा कौन सा? तो गाइज उसका आंसर ये होता है कि जहां पे आपकी ट्रेंड लाइंस और लेवल्स आपस में मैच हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज द हायर एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बायर्स टू एंटर और सेलर्स टू एंटर। ठीक है, क्योंकि उस एरिया पे गाइज आपके फिबोनाची लेवल्स भी मैच हो रहे होते हैं और साथ ही साथ आपकी ट्रेंड लाइन भी मैच हो रही होती है। गॉट इट? सो दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया। ठीक है, और कुछ कंफर्मेशंस भी हम लेते हैं, अगर वो कंफर्मेशन हमें मिल जाती हैं देन दैट इज द बेस्ट एरिया फॉर बाइंग और सेलिंग। ओके, बाइंग at area of opportunity will always give you a better trade with low risk and high rewards guys। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम ट्रेड में इंटर होने के पहले कि हमारा रिस्क कितना है। ठीक है, एटलीस्ट गाइज 1:2 की ट्रेड कही जाती है कि एटलीस्ट आप ले। ठीक है, यानी 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो 20 रुपए का प्रॉफिट ले। ठीक है, ये चीज गाइज कुछ लोगों को सुनने में ऐसा लगता है यार ये बकवास की बातें हैं। ठीक है, अगर मुझे 4 पॉइंट का टारगेट कंफर्म मिल रहा है तो मैं ले लेता हूं, नीचे भले स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का हो। ठीक है, चलो आपने इस तरीके के ट्रेड 2 बार 3 बार आपने पैसा बना भी लिया। ठीक है, 3 बार आपने 4-4 पॉइंट का टारगेट लिया, 12 पॉइंट आपने प्रॉफिट बुक करा। चौथी बार ट्रेड आया, डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस में आ ही चुके हो। ठीक है, ये बल्कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हो कि मेरा टारगेट तो हिट हो ही जाता है, स्टॉप लॉस इतना बड़ा है कि मार्केट हिट करेगा नहीं। चौथी बार भी गाइस मान लेते हैं मार्केट ने आपको प्रॉफिट दे दिया, तो आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए? 16 पॉइंट्स। ठीक है, 5वां ट्रेड जब आप लेने जाओगे ना गाइज, आप मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि कहीं से भी एंट्री प्लान कर लेते हैं कि ये टारगेट तो अब होना ही है, ये मेरा सेटअप अब 100% काम कर रहा है, और उसी दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है गाइज। पूरा 16 पॉइंट भी जाते हैं, प्लस में एक्स्ट्रा 10 पॉइंट हमारे अकाउंट से भी चले जाते हैं। How many of you agree with this? Yes guys, how many of you agree with this? Right? So रिस्क रिवॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। ठीक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। ठीक है, अगर हम रिस्क रिवॉर्ड को इग्नोर कर रहे हैं गाइस तो फिर प्रॉब्लम है, तो फिर हमारी ट्रेडिंग जो है ना ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। ठीक है, कभी कभार हम पैसा बना लेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट हम लॉन्ग रन में पैसा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड को हमें इंपॉर्टेंस हमेशा देना है गाइस, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को इंपॉर्टेंस दे रहे हो एंड इफ यू हैव एक्यूरेसी ऑफ 60 to 70% ऑल्सो, देन ऑल्सो यू विल बी इन प्रॉफिट। ओके,
सो इंपॉर्टेंट ये है कि योर रिस्क रिवॉर्ड शुड बी इन योर फेवर एंड योर एंट्री पॉइंट्स शुड बी सॉलिड, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है गाइस एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी पे बाय या सेल करने का, वो ये होता है दैट इट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू डू टॉप सेलिंग एंड बॉटम बाइंग एज पर द चार्ट्स, ठीक है। जब आप एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करते हो तो आपको टॉप सेलिंग और बॉटम बाइंग करने को मिलती है, जो कि हर ट्रेडर का ड्रीम होता है, दैट आई सेल एट द टॉप, आई बाई एट द बॉटम, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट, ओके। इफ यू आर फॉलोइंग दिस कंसेप्ट देन डेफिनेटली यू विल सी then within some days or some months you will definitely be the trader who will buy at the bottom, sell at the top, okay, all right. So this is what area of opportunity is, okay. Coming to the very important part guys, what is called as entry trigger, ठीक है। एंट्री ट्रिगर क्या होता है गाइस? देखिए हम एक हायरार्की फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड को एनालाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी फाइंड कर लिया कि हाँ भाई हमें इस एरिया में बाइंग या सेलिंग करनी है। बट गाइस बिफोर टेकिंग द ट्रेड यू नीड टू गेट अ एंट्री ट्रिगर, विदाउट दैट यू विल नॉट गो इन द ट्रेड, ओके। Without entry trigger you will not initiate the trade. If you will not get entry trigger, that can be a false buy or sell opportunity for you, okay. जो आपको अपॉर्चुनिटी लगती है कई बार वो फॉल्स सिग्नल होते हैं, राइट। So, उसके लिए गाइज एक एंट्री ट्रिगर कंपलसरी है, इट इज मस्ट। इफ यू आर गेटिंग अ एंट्री ट्रिगर एट एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट इज अ जैकपॉट कॉल फॉर यू, ओके। जो हम लोग कई बार सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, HNI कॉल, जैकपॉट कॉल, प्लैटिनम, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, व्हाट एल्स, और कुछ नाम सजेस्ट करेंगे आप लोग? यस और कौन कौन से नाम होते हैं? सर्विसेज आप लोगों ने ली होगी गाइस, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव टेकन श्योर शॉट, यस। एनी अदर नेम्स गाइस? Any other names from your side? जिन लोगों ने सर्विसेज ली हैं, सुपर डुपर, ओके। सो गाइज देयर आर मेनी काइंड ऑफ फनी नेम्स, ओके, विच यस गारंटीड आल्सो, जैकपॉट, यस। सो क्या होता है गाइज, ये सब जो जैकपॉट और गारंटीड होता नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है गाइज, ठीक है। क्योंकि जैकपॉट देने वाला बंदा जो है ना, मात्र 10,000 रुपए की जॉब कर रहा होता है। Isn't it funny? Yes guys, जो आपको जैकपॉट कॉल दे रहा होता है वो खुद 10,000 रुपए की जॉब कर रहा होता है। Are you aware about this? Right? ठीक है। So guys, ये क्या होता है बेसिकली, जैकपॉट या HNI कुछ भी नहीं होता है गाइस, सीधी सी बात है। क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, उस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करूंगा कि एडवाइजरी कैसे काम करती है, उस टॉपिक के लिए हमने वेबिनार नहीं रखा है। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट आप खुद इतने कैपेबल हो कि आप जैकपॉट कॉल्स या HNI या प्लैटिनम, व्हाटएवर आप उसको कुछ भी नाम देना चाहो, वो कॉल्स, वो लेवल्स आप खुद जनरेट कर सकते हो। यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यू कैन जनरेट दैट, ओके। एंड आई हैव दैट स्टूडेंट्स in my group who are doing that kind of trading, okay. I can show you the proof if you want, ठीक है। So basically guys, हमें किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की जरूरत नहीं है। We don't want anyone to support us when especially we are taking the trading decisions, okay. Trading decisions के लिए guys, we should not depend on anyone in the world, okay, except our mind, ठीक है। अगर हमारा दोस्त भी बोल रहा है कि बाय कर लो, यू शुड हैव दिस क्वेश्चन इन टू योर फ्रेंड दैट व्हाई वी आर बाइंग हियर, व्हाट इज द रीजन, व्हाई यू आर गिविंग मी बाय ट्रेड हियर, व्हाट इज द रीजन गाइस, कैन यू एक्सप्लेन मी द रीजन। जब आप ये क्वेश्चन पूछ लेंगे गाइस तो आपको 90% लोग इसका जवाब देते हुए नहीं मिल पाएंगे।
दैट यहाँ पे रीजन क्या है, हम बाय क्यों करवा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन. दे डोंट नो द रीजन, दे आर जस्ट गिविंग यू बाय बिकॉज समवन केम ऑन CNBC and said buy, so they are giving buy. Okay, so guys ये सारी चीज़ों से ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है. ठीक है, ट्रेडिंग में पैसा बनता है एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो करने से. ओके, सो एंट्री ट्रिगर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस. व्हाट इज एंट्री ट्रिगर? इट इज अ कंफर्मेशन बिफोर वी टेक द ट्रेड. ओके, so entry trigger plays a very important role before execution of the trade. Okay, so before we execute the trade, entry trigger is a very very important thing, very important parameter to be seen. अब entry trigger होता क्या है? Entry triggers are nothing but some high probability candlestick patterns. ठीक है, entry trigger कुछ भी नहीं होता गाइस, सिंपली एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं कुछ जो हायर प्रोबेबिलिटी के साथ काम करते हैं. उन्हीं पैटर्न्स की फॉर्मेशन अगर एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी में होती है, देन दैट इज द प्लेस टू गो इनटू द ट्रेड. ओके, अब उसके एग्जांपल्स बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग, पिन बार्स, हैमर, डोजीज, इनसाइड बार्स आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पैटर्न्स यूज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड. लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सारे कुछ एग्जाम्पल्स के यहाँ पे पिक्चर्स भी लगा दिए हैं. ठीक है, सो ये कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो अगर एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी पे फॉर्म हो जाते हैं तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद अ प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड. ओके, तो गाइज यहां पे TAE फ्रेमवर्क एंड होता है. ठीक है, वो फ्रेमवर्क जिस पे अगर हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली वी विल सी द चेंज इन अवर ट्रेडिंग करियर. यस, टेल मी गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, वॉज इट वर्थ और नॉट. उसके बाद फिर हम चार्ट्स पे आगे प्रोसीड करते हैं. यस, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड TAE फ्रेमवर्क? गाइस ऑल शुड रिप्लाई. दोज आर गेटिंग बोर्ड कैन लीव फॉर द डे. ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं गाइस कि अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है. ओके, okay, can I ask any one of you to just explain me in short what is TAE? Is everyone ready guys? Is everyone ready? Yes, sir. Okay, okay, so Kirti, can you tell me? Kirti, are you able to listen? Intelligent then. All of you mute guys from your side. Kirti Mudaliar. Okay, anyone else? Mr. Rahul Parsani, Yes, sir. can you explain? सर जो टाइम आपका ट्रेंड वर्क था उसमें हम लोग को ट्रेंड देखना है, पहले बुलिश है या बियरिश है. सेकंड थिंग वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड लाइन. एंड द थर्ड थिंग कि हम लोग को जो एंट्री करनी है वो एक पर्टिकुलर बुलिश एंगल्फिंग हो या फिर XYZ कोई भी कैंडल हो, बुलिश या फिर बियरिश, वी हैव टू लुक फॉर इट. Okay. Yes, Hitesh, can you? Hitesh, can you explain? Yes, sir. Can you explain TAE framework in Hindi? सर आज वैक्सीन लिए इसलिए थोड़ा वीक हो थोड़ा सा. Okay, okay, चलो कोई बात नहीं. Okay, anyone else? Sorry, sir. कोई इशू नहीं. Anyone else? Anyone else want to try guys? थोड़ा सा interact करेंगे guys तो सेशन में मजा आएगा. ठीक है? Yes, Mr. Jay, can you want to try? Yes, sir. First, you need to find which trend it is going. It is going in the bullish trend or the bearish trend. Okay. Second thing, you need to wait for the opportunity Okay. when the levels come. There, you need to find the trigger where you need to execute your trade. Before trigger, you shouldn't execute your trade also. Right. So guys, मैं करूं सर. yes, Bhavik.
टीएई के अंदर सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि जो अपना जो ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो बुलिश है या बेरिश है। अब जहां पे भी हमको दिख रहा है कि मतलब हमारा ट्रेंड बुलिश है, हमको ब्रेकआउट मिल चुका है, तो उसके बाद में हम वो ब्रेकआउट लेवल्स मार्क करेंगे। ठीक है, जो ब्रेकआउट लेवल्स हम जो मार्क करेंगे वो होगा हमारा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि हमको ब्रेकआउट मिल गया, मार्केट उसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आता है एंट्री ट्रिगर। एंट्री ट्रिगर के अंदर अगर हमारे को कोई भी एक प्राइस पैटर्न मिलता है, से फॉर एग्जांपल हमको जैसे अगर बुलिश एनगल्फिंग मिल गया, या फिर हमको कोई एक ऐसा पैटर्न मिल गया जो कि हमको बुलिश पिन बार मिल गया, जो हमको ये बता रहा है कि नहीं मार्केट अब यहाँ से बुलिश हो जाएगा, तो वो होगा हमारा एंट्री ट्रिगर, जो हमको कंफर्म करेगा कि अब यहाँ से हमको एंट्री लेनी है। तो दिस इज कॉल्ड टीएई। Right, good, Bhavik. Okay, so guys, I hope TAE is clear to you. Now we are coming to the charts. Okay, जिसका अभी आप सब लोगों को इंतजार था. Okay, so guys, before proceeding, guys, I want to give you one link for the stock selection. Okay, so I am pasting the link in the chat. From here you can select the stocks and it really works very good. Okay, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिसको पता नहीं, आई एम जस्ट पेस्टिंग द लिंक इन द चैट बॉक्स, यू ऑल कैन कॉपी एंड सी. सो गाइज व्हेन यू गो टू द लिंक, आपको यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मिलेंगे नीचे में. ठीक है, लाइक यहाँ पे भी देखिए ऑलमोस्ट 7 स्टॉक्स हैं. अपोलो हॉस्पिटल, नवीन फ्लोरिन, MFSL, ABFRL, ICICI प्रू, मारुति एंड बजाज फिनसर्व. सो ये 7 के 7 स्टॉक गाइज मंडे को परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, इन एनी डायरेक्शन. जरूरी नहीं कि बुलिश डायरेक्शन में परफॉर्म करेंगे, इट कैन इवन कम डाउन ऑल्सो. ठीक है, तो उसके लिए हमको एनालिसिस करनी पड़ेगी. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर स्टॉक सिलेक्शन, कि आपको मंडे को किन स्टॉक्स पे एनालिसिस करनी है और किन स्टॉक्स को ट्रेड करना है. ओके, सो कमिंग टू अपोलो हॉस्पिटल गाइज. ओके, आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. अपोलो हॉस्पिटल कैश. ठीक है, सो आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग गाइज स्टेप बाय स्टेप. ओके, आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप. ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो अभी हमने पढ़ा है टीएई फ्रेमवर्क, उसी पे हम बात करेंगे. राइट, गाइज दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ अपोलो हॉस्पिटल. ओके, एंड if I draw this trend line on the upper side and on the lower side, it is clearly visible to us guys that Apollo Hospital एक रेंज में ट्रेड कर रहा है from last year, right? Okay. Now coming to the immediate range, अगर हम immediate range की बात करेंगे, ठीक है, ये तो हमने ट्रेंड पता लगा लिया कि ये ओवरऑल बुलिश में है जब तक ये नीचे में ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर रहा है. राइट, कमिंग टू द इंट्राडे पार्ट. ठीक है, तो इंट्राडे में गाइज हमें मालूम है कि ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च. राइट, ठीक है. नाउ गाइज व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, दैट if a level is retested more than 3 times, it has the higher probability of breaching that level. This is the first time, second time, third time, fourth time. This is 5th time it has made exactly the high at the same place. So guys, Apollo Hospital has a very high probability of breaching this level on Monday. Okay, because this is the 5th time it is approaching the same level. Okay, and if you see the momentum guys, momentum is continuously decreasing. Low, higher low, higher low. Okay, it is almost a double bottom. So all the indications are in the favor of bullishness. So if Monday goes above the high of Friday, okay, what is the high? It is 3465. Okay, then guys we can see a rally up to 3980 in Apollo Hospital in coming time. It can touch this trend line very soon. Okay,
Now, if you talk about the entry, that we will plan on Monday as per the entry trigger. Okay. I just wanted to tell you that whatever hierarchy I told you, that is trend analysis, area of opportunity, that I wanted to show you. Okay. So here is the area of opportunity where it is trading right now. So if we got a closing above this, then it can shoot up till this level. Okay. सो अब वो एरिया आ चुका है जहां पे हमें अब एंट्री प्लान करनी है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज ट्रेडिंग एट अ एरिया ऑफ सप्लाई. ठीक है, यहां से मार्केट में हमेशा से सप्लाई आ जाती है, जैसा कि आप प्रीवियसली भी देख पा रहे हैं. यहां से मार्केट आया, सप्लाई आ गई, यहां आया, फिर हल्की सप्लाई, यहां आया, फिर से सप्लाई, यहां आया, फिर से सप्लाई. अब यहां पे आया है गाइस. अगर यहां से इस बार सप्लाई नहीं आई तो मार्केट एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देगा गाइज यहाँ पे, और उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल लगभग 4000 का लेवल टच करता हुआ हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा. ओके, सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट गाइज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? समझ में आ रही चीजें गाइज? यस सर. ओके, ऑल राइट. I will take one more stock guys, that is MFSL. ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग की क्वेरीज लूंगा और सबसे लास्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी. गाइस, ट्रेडिंग इज नॉट दैट मच टफ जितना आप लोगों को लगता है, और इतनी इजी भी नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है कि इजी है. राइट, देखिए, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो अनाड़ी लोग भी पैसा बना लेते हैं. ठीक है, और स्पेशली गाइस जब मार्केट हाईली वॉलेटाइल होता है ना, तब न्यू कमर्स ही पैसा बनाते हैं. ठीक है, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स तो गाइस बिना ट्रिगर के या बिना प्रॉपर अपॉर्चुनिटी के ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनको कुछ मालूम नहीं होता है. राइट, एंड दे एंटर विदाउट एनी नॉलेज एंड समटाइम दे अर्न्स वेरी गुड मनी. ठीक है, तो ज्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं, और आप लोगों में से भी जितने लोगों ने एंट्री करी होगी इस मार्केट में, कई लोगों की एंट्री बहुत पॉजिटिव रही होगी. एम आई करेक्ट? यस गाइस, किसकी किसकी एंट्री पॉजिटिव रही थी इस मार्केट में? राइट, यस. सो होता क्या है, हमें नॉलेज होता नहीं है, एंड वी जंप इनटू द मार्केट एंड देन वी मेक मनी जस्ट विद द ट्रेंड. ओके, जस्ट विद द फ्लो. चलिए, यहां पे बात करते हैं गाइस कि MFSL में क्या हो सकता है. तो MFSL में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट रीटेस्ट, फॉल, सेकेंड रीटेस्ट, फॉल, थर्ड रीटेस्ट, फॉल, फोर्थ रीटेस्ट, माइन्यूट फॉल. थोड़ा सा जूम करके देखते हैं व्हाट विल हैपन. दिस टाइम गाइज इट डिड नॉट फॉल. इस बार इसने एक बड़ी कैंडल बनाई गाइज, ब्रेकआउट दिया. ओके, लेट अस चेक द वॉल्यूम आल्सो, इज इट सपोर्टिंग? वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा लो है गाइज, सो इट इज लिटिल बिट नॉट कन्विक्शन वाली ट्रेड ये नहीं है. ठीक है, आई एम नॉट फुली कन्विंस्ड. ओके, यहाँ पे मुझे एक और कैंडल क्लोज चाहिए है इस लाइन के ऊपर. ठीक है, जस्ट बिकॉज द वॉल्यूम इज नॉट सपोर्टिंग दिस पॉइंट. सी द कैंडल एंड सी द वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम कुछ खास नहीं है गाइज, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे ये हुई है कि यहाँ पे एक हायर वॉल्यूम आया था गाइज, उसके बाद मार्केट ने यहीं से यू टर्न लिया, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री हुई है बायर्स की. ठीक है, तो यहां से एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मंडे को कुछ इस तरीके का कैंडल बन जाए जो कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पूरा क्लोज हो जाए. तो यहां पे हम बाय प्लान कर सकते हैं, या तो मंडे को मार्केट कोई ऐसा कैंडल बना दे जो काइंड ऑफ अ हैमर पैटर्न हो,
ठीक है, या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी बन सकता है, यहाँ पे कुछ भी बन सकता है, ठीक है। या इस तरीके से एक मानिए बड़ा कैंडल भी यहाँ पे बन सकता है, समवट लाइक दिस, राइट। तो कुछ ऐसा हमें मंडे को मिलना चाहिए जिससे हम कन्विंस्ड हो जाए कि यहाँ से अब ये ऊपर जाने को तैयार है। अभी हम फुली कन्विंस नहीं, क्योंकि वॉल्यूम में, मतलब वॉल्यूम से क्या दिखता है गाइस कि मार्केट ऊपर तो गया, लेवल तो टूटा है, लेकिन उतने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। हाई क्वांटिटी में बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है। तो बायर्स जब यहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे, या बड़े प्लेयर्स जब यहाँ एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे, तो वॉल्यूम में आपको स्पाइक दिखेगा। और जो वॉल्यूम के साथ गाइस ब्रेकआउट आता है वो बहुत ही जैकपॉट ट्रेड होता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको हम मंडे की क्लोजिंग का वेट करेंगे। मंडे की क्लोजिंग के बाद हम इसको डिसाइड करेंगे दैट व्हाट वी नीड टू डू हियर, राइट। तो टिल देन वेट एंड वॉच, मंडे को देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, और उस हिसाब से हम अपना ट्रेड फर्दर इसमें प्लान करेंगे। ऑलराइट, यस गाइस, नाउ अबाउट योर स्टॉक्स। Only one stock per person is allowed guys, okay, because it will take lot of time. So कोई एक स्टॉक जो आपको पूछना हो, you can ask me, we will discuss it here. Okay, Biocon, all right. Whatever stocks guys I am telling you is all cash, okay. No future, nothing, only cash. देखिए लेवल्स के साथ साथ कंसेप्ट भी समझिएगा गाइस, तो मज़ा आएगी, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ लेवल्स अगर आप सुन के चले जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगी गाइस, ठीक है। ऑलराइट, Biocon is not weak until it is not breaking 369 levels on the lower side, okay. इमीडिएट में एक सपोर्ट है इसका लगभग 385 के आसपास, ये ब्रेक होता है तो 369, बिलो 369 वी कैन सी अ ड्रास्टिक फॉल इन Biocon, ऑलराइट। चलिए कमिंग टू द अपर साइड, अपर साइड पे गाइज एक चैनल में चल रहा है, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, इट इज रनिंग इन अ चैनल, ओके। तो अपर साइड का चैनल लगभग 420 421 का है। ये ब्रेक होता है तो इसमें एक मोमेंटम बाइंग हमें आती हुई दिख सकती है, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दैट 1 2 3 एंड 4, फोर्थ टाइम दिस लेवल इज रीटेस्टेड एंड अगेन स्टार्टेड फॉलिंग। सो अगर ये वाला लेवल नीचे ब्रेक नहीं होता है, विच इज़ अराउंड 369 370 लेवल्स, तो 420 ब्रेक होगा और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमें आता हुआ दिखेगा, ठीक है। एटलीस्ट इसमें जो हमें टारगेट्स मिलेंगे, ये आप मान के चलें कि, जस्ट अ सेकेंड गाइस, इसमें टारगेट हमें मिल सकते हैं कम से कम 50 पॉइंट्स के, यानी 470 तक के लेवल हमें बायोकॉन में देखने को मिल सकते हैं, बट 370 बिलो विल बी आर स्टॉप लॉस, ओके, ठीक है। तो दिस इज फॉर बायोकॉन, ओके। भारती एयरटेल, ओके, ओके गाइस, भारती एयरटेल को अगर हम देखने की कोशिश करें, एक रेंज में है गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो ट्रेंड लाइंस मैंने प्लॉट करी हैं अभी, ठीक है। इट इज़ इन अ रेंज, राइट। और इमीडिएट में अगर यहाँ पर मार्क करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन ये जा रही है गाइस, एक ट्रेंड लाइन लगभग ये जा रही है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये मल्टीपल सपोर्ट्स ले रहा है, राइट, ओके। देखिए अब भारतीय एयरटेल के अंदर एक समझने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय एयरटेल में एक लेवल आ रहा है लगभग यहाँ पे 620 630 के बीच में,
जहां से आप देखेंगे एक शार्प रिजेक्शन आया था मार्केट में लगभग 400 के लेवल्स तक, राइट। फिर से मार्केट ने वी शेप रिकवरी करी, वहीं पे टच होके फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, वहीं पे टच होके फिर से नीचे आया, ठीक है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अभी गाइज इसमें जो स्ट्रक्चर बन रहा है आप देखेंगे, सो इट इज अ लो, हायर लो, हायर लो, और देखिए उसी ट्रेंड लाइन का लो बना है अभी 2-3 दिन पहले। यानी कि ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं हो रही है, भारती एयरटेल इज स्लाइटली बुलिश, ठीक है। चलिए ब्रेकआउट लेवल की बात करें, सो ब्रेकआउट लेवल हमारे यहां पे बनते हैं गाइस। ब्रेकआउट इसमें लगभग आप मान के चलिए 555 के ऊपर या 560 के ऊपर इसमें प्रॉपर ब्रेकआउट आ जाएगा गाइस। लोअर साइड में अगर हम देखने की कोशिश करें तो लगभग 520 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 520 522 का। इसके नीचे अगर कोई क्लोज आ जाता है तो भारती एयरटेल हमें इस वाली ट्रेंड लाइन तक फॉल करता हुआ दिख सकता है, जो कि लगभग 460 का लेवल होगा। और अगर ऊपर में 555 या 560 का लेवल कटता है तो पहला टारगेट यहाँ से 620 के अप्रॉक्स और दूसरा टारगेट यहाँ से लगभग 650 के अप्रॉक्स हमें देखने को मिलेगा। तो पहला टारगेट 615 के आसपास, दूसरा टारगेट 650 के आसपास, 650, ओके। तो एक शानदार रेंज में फंसा हुआ गाइस, मुश्किल से एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देगा, ठीक है। वॉल्यूम्स एक बार चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम्स कैसे हैं यहाँ पे। अभी बहुत नॉर्मल वॉल्यूम है गाइस, बहुत मिड वॉल्यूम है। अभी इसको टच मत करिए, लेट इट ब्रेक द रेंज, ठीक है। ब्रेक करेगा या तो नीचे में करे या तो ऊपर में करे। वॉल्यूम में स्पाइक आता है तो डेफिनेटली नीचे में लगभग 455 460 का टारगेट है, और अगर ऊपर ब्रेक करता है तो 615 का टारगेट देखने को मिलेगा, ओके। अभी हम डिस्कशन करेंगे गाइस, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी सम मोर टाइम। और जो लोग अभी तक वेबिनार में बने हुए हैं, थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस गाइस, ठीक है। पेशेंस मस्ट है, ठीक है। और फीडबैक जरूर देके जाइएगा गाइस, दैट वाज इट वर्थ और नॉट, ठीक है। सबसे लास्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। भारत रसायन, ओके गाइस, लेट अस सी। वेरी बिग स्टॉक भारत रसायन। सी भारत रसायन इज इन दिस चैनल। सबसे पहली बात, ऊपर से ऑलमोस्ट 3 बार रिजेक्शन आ चुका है, ठीक है। भारत रसायन में ऊपर से 3 बार रिजेक्शन आ चुका है, ठीक है। लोअर साइड पे अभी जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं हो रहा, ब्रेकडाउन नहीं आएगा, और यहां पे बन जाता है एक इंटरसेक्शन एरिया, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत रसायन की। तो भारत रसायन के अंदर गाइस आप देख सकते हैं कि अपर एंड से ऑलरेडी 3 बार रिजेक्शन आ चुका है, और दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं मिल पा रहा है गाइस प्राइस को, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन लगभग कहाँ आ रही है गाइस, 13,600 का लेवल है ये, ठीक है, जिसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। तो 13,600 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए अगर इसको बुलिश फेज में जाना है तो। अदरवाइज लोअर साइड पे ये 10,800 से लेके 10,100 तक फॉल दे सकता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। इमीडिएट की बात करें अगर, तो इमीडिएट में आपके पास ये एक सपोर्ट है, जब तक ये खड़ा हुआ है जब तक आप पोजीशन अपनी होल्ड करिए अगर बाय में है तो। और ये लेवल जैसे ही कटता है पोजीशन से एग्जिट कर जाइएगा, जिसकी भी ये पोजीशन है। ये लेवल है लगभग गाइस 12,400 का, ठीक है। 12,400 के नीचे अगर कल क्लोजिंग आ जाती है, भारत रसायन से एग्जिट कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि फॉल बड़ा आ सकता है। ऊपर में जैसे आपको बताया 13,600 13,700 का रेजिस्टेंस है, जब तक वो ब्रेक नहीं हो रहा है ये एक साइडवेज जोन में है, और स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो अगर वेट करते हैं तो अच्छे टारगेट्स अपर साइड में देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर इमीडिएट में निकलना है तो 12,400 के नीचे निकल जाएंगे हम, राइट। ठीक है, ऑल राइट। टारगेट फॉर भारत रसायन, ओके, फोर्टीन 100 के ऊपर 14,800, 15,600, 17,200 और 20,000 तक के टारगेट ये देखने को मिल सकते हैं, बट अबव 14,100। ठीक है, 14,100 के ऊपर हमें क्लोज मिलेगा, उसके बाद ही इसमें रैली आएगी। तो कुल मिला के इसका स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस बन चुका है अब 13,700 से 14,100। ठीक है, इस लेवल से ऊपर जब मार्केट जाएगा तो ही इसमें तेजी बनती हुई हमें दिखेगी, राइट। ओके, टाइटन देख लेते हैं गाइस। सम पीपल आर ज्वाइनिंग वेरी लेट गाइस। ठीक है, यू हैव मिस्ड अ वेरी गुड पार्ट। गाइस टाइटन में ब्रेकआउट आ चुका है, कोई भी रीटेस्टिंग होती है इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, टाइटन में ब्रेकआउट आ चुका है, रीटेस्टिंग नहीं हुई है, यानी कि टाइटन अगर 1650 तक भी आ जाता है कोई घबराने वाली बात नहीं है, इट्स अ गुड एंट्री एरिया। ओके, अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट्स की बात कर लेते हैं, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो कहाँ तक जा सकता है गाइस। सो इफ वी टॉक अबाउट द टारगेट्स, देखिए 180605 का एक लेवल है जो इमीडिएट में भी आपका रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। वो क्रॉस होता है तो 1860, 1960 एंड फाइनली 2150 ये टारगेट्स टाइटन के थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में है। 1620 से लेके 1650 ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया है, नोट डाउन करिएगा। 1620 1650 इज स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों बोल रहा हूं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, हालांकि इतनी डेप्थ में गाइस कोई एक्सप्लेन करता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड टाइम कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट। तो अगर मार्केट इस लेवल तक वापस रीटेस्ट करता है गाइस इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी और यहाँ से अच्छा अपर साइड दिख सकता है। और अगर 1806 का लेवल क्रॉस होता है तो भी इसमें हम बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर साइड पे गाइस पहले हमें ये रेड ट्रेंड लाइन दिखेगी, लगभग 1780 का लेवल है, उसके नीचे 1680 और 1650 ये एरिया बाइंग का है। यहाँ पे मार्केट आता है तो डेफिनेटली हम बाइंग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं टाइटन के अंदर। ओके, for MVM students we will do a session guys in the evening, there we will discuss everything. Okay, any other sessions, any other stocks guys? Any other stocks? Adani Ports. Sir, NTPC, sir. Mr. Mahesh will discuss in the session. Okay. Okay, sir. Okay. Adani Port. Okay.
डबल टॉप है और 752 के ऊपर चलेगा तो इधर अच्छा चलेगा। लेट मी सी। गाइज लगभग 790 800 का लेवल आ रहा है, वो जब तक ये क्रॉस नहीं कर रहा है ये वीक है। दूसरा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिखा देता हूँ जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि ऊपर में गाइज इसने बना दिया है एक सप्लाई जोन, दिख रहा है आपको ये ऊपर में इसने यहाँ पे लगभग एक सप्लाई जोन फॉर्म कर दिया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट में 2 बार रिजेक्शन आ चुका है, काइंड ऑफ अ डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है। 800 के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा टू बी बुलिश, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक बेरिश इंडिकेशन मुझे ये दिख रहा है कि गाइज मार्केट ने, चलिए एक बार हम रिट्रेसमेंट डाल के भी देख लेते हैं गाइज इसमें कितने % का रिट्रेसमेंट हुआ है। अगर 61 का हुआ है तो सॉलिड यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। देखिए 50% का रिट्रेसमेंट हुआ, 50% के रिट्रेसमेंट के साथ साथ गाइज यहाँ पे बना बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। सो अब जब तक यहाँ पे 770 के ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है वी कैन बी ऑन द सेल साइड, ठीक है। अगर ये 800 का लेवल नहीं तोड़ता है गाइज तो मैं आपको अदानी के टारगेट बता देता हूँ, वो टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए 700 का पहला टारगेट था जो हो चुका है लगभग। दूसरा टारगेट गाइज यहां से बनता है आपका 665, तीसरा टारगेट 630, चौथा टारगेट 600, 555, 530, 500, 441 और 337, ठीक है। अब आप कहेंगे इतनी दूर के टारगेट सर आपने क्यों दे दिए, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है गाइज इस हिसाब से फाइनल टारगेट आ रहा है 336, ठीक है। यानी यहाँ से 50% का फॉल आ सकता है अगर 800 क्रॉस नहीं करा तो, ठीक है। मिनिमम आप ये मान के चलिए कि 630 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। 630 कटते ही आपको 600, 555, 530 और 500 यहाँ तक का फॉल देखने को फॉर श्योर इसमें मिल जाएगा। स्ट्रक्चर वीक है, बिलो अबव 800 ओनली इट विल बी बुलिश, ठीक है। अपर साइड से मैं एक रिट्रेसमेंट और डालना चाहूँगा गाइस ताकि मुझे इसका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। परफेक्ट है गाइस, 38% कट चुका है। 630 कटते के साथ ही गाइस 600, 550 ये लेवल्स फॉर श्योर देखने को मिल जाएंगे। 630 कटता है तो पोजीशंस को एग्जिट करना है, ठीक है, होल्ड नहीं करना है, ठीक है। NBCC, ओके गाइस, मैं कैसे क्या ड्रॉ कर रहा हूं वो चीज़ों के चक्कर में आप लोग मत पड़ो तो अच्छा है, ठीक है। वो चीज़ें इतनी जल्दी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा और वो उसको एक्सप्लेन करने में मुझे 1 महीने का टाइम लगता है, ठीक है। फॉर दैट यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ MVM फैमिली, ठीक है। दैट इज़ नॉट सो ईजी पार्ट कि मैं आपको एक 1-1.5 घंटे के सेशन में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। NBCC, okay. All right. NBCC has given a breakout, guys. 53 is the immediate support now. Okay, let me check one more thing here.
guys, NBCC is in a very very good structure. Okay, I will tell you the targets. Okay, it is third, fourth. Okay, so above 58 guys, 68 and almost 75, these levels can be seen very soon above 58 levels only. Okay, because 57 58 is the level which is getting higher respect almost 2 times. Okay, if you see here, it is in a range from almost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 almost 10 11 days it is in a range. Okay, so the range is nothing but 58 and 53. So जिधर का भी ब्रेकआउट होता है इधर 58 और 53, इट विल फॉल इन दैट प्लेस. ठीक है, अगर 53 बॉटम में ब्रेक होता है देन आई थिंक इट कैन फॉल टिल 49, और अगर 58 ब्रेक होता है तो 68 एंड 75 विल बी द टारगेट्स ऑन द अपर साइड. ओके, L&T हाउसिंग फाइनेंस. ओके, L&T housing finance. Is it L&T Finance Holding, right? Yes sir, Finance Holding. Yes, sir. Is L&T Finance. Larsen and Turbo, sir. Okay, okay, okay. 95 का स्टॉक है ना ये. Price near 156. L&T Housing Finance. Which one is this? This one or which one? L&T Finance Holding or what? What is not coming? Can you tell me the symbol? Just a moment. Whose question it is? Yes, yes, yes. It's 95 only, right? 95 is the price, right? Yes sir, yes sir, 95. L&T Finance Holding ऐसे L&T Finance डालेंगे तो आ जाएगा. L&T Finance ही तो डाल रहा हूँ ना. हाँ बराबर है सर, पहला वाला ही L&T Finance नहीं, एक मिनट, नहीं ये नहीं है सर, आप इसमें डालो L&T Finance, वो एंड का वो सिंबल डालना पड़ेगा आपको. हाँ यही है सर, L&T Finance Holding ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला. वही तो करा है ना मैंने. हाँ ठीक है ना. L&T Finance. See, L&T Finance is bullish, but now in a range. If it is breaking the range, it can come up till 115 levels. Okay, 115, and above 115 we can see a breakout in this. Okay, so it's in a range right now. Lower side is around I think this is the level on the lower side, around 74. 74 is now a strong support, guys. Below 74 only it is weak, else it is now bullish. Above 113 115 it is bullish. Okay, right now it is in a range, so we should wait for the range to break. Okay, 1 2, right, it is in a range, right? On the lower side it's 86,
upper side it's 97, so 86 or 97, let it break the range, then we can plan. If on the lower side 74, on the upper side it is 113. All right, all right. Okay guys, now moving to Nifty. Guys, in Nifty already I have drawn one trend line for you, which is from 2008. Okay. Now let us see what is the importance of this trend line. Okay. Okay. First time retest around mid of February, a fall. Again retest, a fall. Again retest, a fall. Okay. Again retest, retest. Then guys, if we look carefully, now carefully understand the importance of the trend line. Okay, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है सर वो. right, this is the first candle guys which is formed on 3rd June. Okay, understand how price action is working. Okay, 3rd June को पहला कैंडल क्लोज होता है हमारा यहाँ पे. Got it? 3rd June के बाद आप देखेंगे गाइज closing above at the trend line above. ये मार्केट कितना नीचे गया गाइस, लेकिन क्लोजिंग ऊपर above and above. So how many days guys? From 3rd June till today, right? इतने दिनों से गाइज ये लेवल ब्रीच नहीं हुआ. अब ये लेवल की बात करें तो ये लेवल कौन सा है? 15,720 का लेवल है ये. ओके, विच इज नॉट ब्रीच्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट 20-25 डेज. गॉट इट? ओके, नाउ ये तो आप लोगों को समझ में आ गया. जब तक इसके नीचे निफ्टी नहीं है, जब तक ये बेरिश नहीं. राइट, अब बात कर लेते हैं ऊपर के टारगेट्स की. सो आई विल गिव यू टू काइंड ऑफ टारगेट्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. ओके, सो दीज आर द टारगेट्स फॉर द लॉन्ग टर्म गाइज. इमीडिएट में आप जैसा कि देख पा रहे हैं 15,800 वाज द लेवल. इसके ऊपर क्लोज नहीं मिल रहा था. फाइनली गाइज वी गॉट अ क्लोज. ओके, 15,880 वाज द क्लोज. इमीडिएट में टारगेट है लगभग 16,020 का. Okay, which can be seen on Monday, means tomorrow, right? Just note down the targets guys. Okay, above 16,010, next target is 16,400, and above then we have 17,150. These are the three targets on the upper side for long term. Okay, now coming to the short term. Okay, these are for the long term. Coming back to the short term guys, okay, coming to the short term guys, perfect guys, I am seeing a perfect thing here. Okay, which I will definitely discuss in the evening with my students. A perfect scenario here guys. Okay, all right. Okay, now for the short term, see 16,010 is very crucial resistance right now, because it is same on two levels. Okay, above that guys, what are the targets? 16,175, 16,345, 16,420. So now one more resistance area on the upper side. What is that resistance area guys? It is what? It is 16,420 and 16,350. So 16,420, 16,350 is now a strong resistance area for Nifty on the upper side. Okay, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा लगभग 16,350, 16,420, जो कि अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा. अबव 16,420 गाइस, नेक्स्ट टारगेट विल बी 16,580, 16,730, 16,900 and then finally
17,150 and 17,200. Okay, so these are the targets in Nifty for the long term and the short term. Below 15,700 only, guys, we will see a fall. Else any dip is a buying opportunity, और मुझे लगता नहीं है कि अब इसमें डिप हमें देखने को मिलेगा. ओके, फ्राइडे का जो लो है दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, दैट इज 15,800. Below 15,800 only, guys, we can see a fall of 70 to 80 points towards 15,720. Else now 16,000 is visible very soon. Okay, coming to Bank Nifty. Guys, Bank Nifty is also at very very crucial levels. Okay, and if you ask me the targets of Bank Nifty, it's 37,800. Okay, 37,800 is my target. Okay, what are the intermediate targets? Okay, note down the targets, guys. 36,200, 250 is the immediate target. Above that, 37,700, 750 or 800 is the next target. Okay, so 36,200, 37,700. These are the two targets on the upper side. Got it? Now coming to the short-term targets, guys. For short-term, guys, the first target I already told you is 36,200 around. Yes, so 36,200 is now a crucial level. Okay, it's a crucial resistance. Above that, 36,900, and above that, 37,700. These are the three targets in Bank Nifty. Okay, but guys, Bank Nifty has to give a positive close tomorrow. This is the condition. Okay, आंख बंद करके कूद नहीं जाना है, कल की क्लोजिंग पॉजिटिव आनी कंपलसरी है, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी. ऑलराइट, और अबव 36,200 ही हम इसमें प्रॉपर बाइंग में एंट्री लेंगे. ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि 36,200 टच करके यहाँ से फिर से नीचे आ सकता है. ओके, सो 36,200 शुड बी आवर इमीडिएट टारगेट. उसके ऊपर अगर कोई क्लोज मिलता है देन 36,900 एंड देन 37,700. ऑलराइट, सो इज इट क्लियर गाइस टू एवरीवन? Yes guys, is it clear? The levels are clear to everyone? All right guys, अब किसी तरीके